one more program in Happy 15 series, that is motivational session by CA IRS CA Sarika Jain ma'am. I Praveen Bangad welcome on behalf of Aurangabad branch of WIRC of ICI. I welcome you ma'am and all the participants. Now I request Pankaj to have his welcome address. Good evening, everybody. Sarika ma'am. Yeah. Sarika ma'am, you're there? है तो सही पंकज. Yeah, just a minute. Just a minute. Yeah, she wants, maybe in 2-3 minutes she will be here. Okay. Anyways, I welcome you all on behalf of Aurangabad branch and Aurangabad Vikasa to this wonderful session of CA Sarika Jain ma'am. She's an chartered accountant and an IRS and DCIT and an ultimate personality where, you know, I have read about her, I have heard about her a lot. In fact, I have watched her many videos on YouTube, and just when I listen her name and I get charged up and I am motivated. The journey of Sarika ma'am itself is an inspiring journey, and one in this tough situation of pandemic and also the course of chartered accountancy, one needs to be really determined and motivated towards the goal, like Sarika ma'am. Hats off to Sarika ma'am, and I hope after this session we all get motivated towards our goal so that we can accomplish any task that we desire to. Over to you, Praveen. Pankaj, as we all knows that we are running this Happy 15 series since from 17th of this month to the 1st of July. So we have decided to have some motivational session with very good speaker, and as already Pankaj mentioned, I'll just read the short profile in very short word of Sarika ma'am. She is a chartered accountant and she is a IRS also. She is from Odisha, currently posted in Mumbai as a IRS Deputy Commissioner of Income Tax, Aikar Bhavan. She qualifies her CA exam in 2011 and she qualified UPSC in 2013. She has awarded many times by various government institutions, CA Institute, and various print media and television media. Few of her achievement in the form of awards are as follows. First disabled person in civil services from Odisha by Chief Minister. She has awarded as a first disabled person in civil services from the Odisha. Bharat Prerna Award by Ample Mission. Winner in Life Award by DNA. Best Motivational Woman of the Year 2015 by Jain Community. Motivational Speaker for Women in Empowerment by ICI Mumbai. You will find she is having her own YouTube channel. In this channel, so many videos of her motivational videos are available. Now I welcome you, ma'am, once again, and I request to start the session now. Sarika ma'am, I am very much inspired by one sentence I get charged up, which I had heard about, told by you about the polio that you had told. Polio sharir mein tha, par dimag mein nahi tha. It is wonderful to have you, ma'am, here. Over to you, ma'am. Thank you so much, Pankaj ji and Praveen ji. मेरे लिए भी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा नया है और मैं अभी देख सकती हूँ कि कुछ 20 या 25 लोग हैं अभी ऑनलाइन. तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर सके तो आई कैन सी. मतलब इसमें ऑप्शन है देखने का या नहीं? है मैम, है ना? आई कैन सी ना? तो
I I think request all the participants kindly switch on their cameras. मैम want कि कौन कौन अच्छे अच्छे participant join हुए हैं. We want just to know. I think some more people will be joining in time, Yes. in some time. Yeah. People are joining in, I believe, slowly. Yeah. I'm so sorry, बीच में 2-3 कंटिन्यूअस फोन आने के कारण मैं आवाज नहीं सुन पा रही थी. आई एम नॉट एबल टू सी द पीपल. क्यों लोग सामने नहीं आ रहे? और ऐसा कौन सा आपको मोटिवेशन चाहिए कि आप देखना तो नहीं चाहते, सुनना तो चाहते पर अपने आप को दिखाना नहीं चाहते? मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और जब मैं आज यूपीएससी कंप्लीट कर लिया तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मैम मुझे गाइड कर दीजिए. मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए, गाइड कर दीजिए. और मैं समझ में नहीं आता मुझे कि 1 या 2 लाइनों से आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं. तो आज दिस इज माय फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग टू यू कि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. हम सीए फ्रेटर्निटी हमेशा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कि हमें देना कुछ नहीं, लेना जरूर है. भाई हम सुन तो लेते हैं, हम कुछ बताएंगे नहीं. तो मैं सेशन की शुरुआत आप लोगों से करूंगी. पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से सुनना चाहूंगी. आई डोंट नो कि आप लोग कौन से स्ट्रीम से है, कौन से प्रोफेशनल से हैं, मतलब कौन से प्रोफेशन से हैं आपके, आप सीए फ्रेटर्निटी से हैं या अदर से हैं. सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपकी क्वेरी क्या है या फिर आप क्या विचारधारा क्या है लाइफ के लिए, कैसा है. देन वी कैन प्रोसीड. अदरवाइज ऐसा लगेगा कि एक पेपर में मैं स्पीच लिख के लाऊं और बोल के चले जाऊं, और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अगर सुनने वाले मजेदार नहीं हो तो सुनाने में मजा नहीं आता है. सुनाने में तभी मजा आता है जब वो चोट करे जाके कान को गहरी सी. तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो आई वोंट स्पीक एनीथिंग, मैं चले जाऊंगी पक्का. तो पंकज जी ने जो मेहनत की आपके लिए वो पानी में चली जाएगी, देखिए. तो फिर मैं यहाँ पे भी ऑडियंस मिक्स है मैडम. हाँ, सतीश ये है ऐसा नहीं है, हमने ओपन फॉर ऑल रखा है प्रोग्राम. यस, दैट इज ओके. इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस खुद, जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, अपना समय दे के लॉग इन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो अपने कैमरे ऑन कर सकते, तो ओके. नहीं कर सकते, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपने क्वेरी पूछिए और आप अपने बारे में बताइए या आप क्या जानना चाहते हैं या क्या सोच के ये प्रोग्राम ज्वाइन किया. तो ऑन दैट थिंग आई कैन स्पीक. आप समझ पा रहे हैं पंकज जी? आप शायद मेरी विडंबना समझ पा रहे होंगे. और अगर आज आनंद जी आप अभी बोल सकते हैं. आनंद नाहर, आपने कहा अनम्यूट. नाउ यू आर एबल टू. जिस किसी को भी कुछ बोलना हो तो वो रेज हैंड का उसमें ऑप्शन होता है,
तो रेज हैंड ऑप्शन करेंगे तो एडमिन कैन अनम्यूट देम। देखो मैं भी पक्की मारवाड़ी हूँ, मैं सिर्फ देने में विश्वास नहीं करती, देने और लेने दोनों में विश्वास करती। अगर आपके तरफ से रेस्पॉन्ड नहीं आएगा, आई वोंट स्पीक। आनंद ने ये किया था, शायद उसको अनम्यूट किया था ना अपन ने। हाँ यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग मैडम। आनंद जी बोलिए। बहुत अच्छा सेशन ब्रांच ने रखा है। आपसे शुरुआत कीजिए मैडम, हम लोग क्वेरी पूछेंगे आपको जरूरी, बट आप एक स्टार्ट कीजिए तो डायरेक्शन तो चालू हो जाएगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन में हम आए हैं और सारे श्रोता सोए हैं, तो कवि कैसे गाए हम समझ नहीं पा रहे। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब आज तक मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई, इसीलिए मुझे आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आई हूँ और सारे सोए हुए, तो मैं कैसे जगाऊं? सोते हुए कोई जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे जगाए? नागार्जुन को भी कुछ बोलना था शायद। अनम्यूट किया नागार्जुन भाई, आप बोल सकते हो। Sir, thank you so much. And madam, this is CA नागार्जुन राव। बट आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ आ रही आवाज। मैं आपको अच्छी से सुन पा रही हूँ, मैं पहचान भी पा रही हूँ। नागार्जुन इज द फर्स्ट सुपर अचीवर ऑफ द कनेक्ट इजी। अब मैं देख पा रही हूँ उन्हें, तो उन्होंने वो तो ब्रांड एम्बेसडर है कनेक्ट इजी के, सुपर अचीवर के। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको। बड़ी बात कर दिया आपने। अभी आप मेरे को इंट्रोडक्शन तो देना नहीं पड़ेगा मोस्टली, ऐसा मुझे अभी समझ में आ रहा है आपकी बातों से। इतना जरूर नागार्जुन आपके यहाँ शायद कुछ टेक्निकल इशू हुआ, शायद वो आवाज चली गई है। हाँ वापस से शायद रिजॉइन हो जाएंगे मैम। अब मैं नाम लूंगी, फिर आप लोग को अपने आप को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। देखिए आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। यस जायसवाल, तो इससे ये पता चल जाएगी कि ये सही जनता है कि गलत नाम लेके आ गई। अब ऐसा भी हो जाएगा कि भैया जूम मीटिंग पे भी भरोसा नहीं रहेगा लोगों को। यश को अनम्यूट करते हैं। यस जायसवाल जी बताइए। हाय मैम। हाय हाय, बढ़िया, कैसे हो? मैम मस्त हो एकदम। आई एम अ सीए स्टूडेंट मैम। लग रहा है स्टूडेंट हो, सीए रहता तो हाय नहीं करते। और जब तक आप स्टूडेंट रहोगे तभी तक आप हाई वर्ड यूज कर पाओगे, आगे नहीं कर पाओगे। यस मैम। यस, तुमको क्या एक्सपेक्ट है सेशन से या मैम से? मैडम सुन रही है और वो टॉपिक पे ही मैम बोलने वाले हैं। सो व्हाट यू वांट, देखो चांस मिला है इतना अच्छा, तो आप बोलो मैम। नागार्जुन आपकी बारी यस के बाद आती है, ठीक है, बताइए यस। मैम ये अभी सीए स्टूडेंट के एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हम मतलब ऐसा बहुत प्रेशर में रहती है हमारी लाइफ, मतलब ऑफिस स्टडीज सब मैनेज करना पड़ता है, तो ऐसा बहुत मोनोटोनस फील आता है कभी कभी। तो इसमें कैसे खुद को, चैलेंजेस कम है इसलिए मोनोटोनस आता है कि सेम रूटीन है इसलिए मोनोटोनस आता है? सेम रूटीन फॉर 6 days a week। अच्छा, पर चैलेंजेस कम लग रहे हैं, थोड़े उसमें और इनपुट डालने पड़ेंगे, ऐसा है? हाँ मैम बोल सकते हो। तो इसको कैसे हम पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं, या इसको कैसे हम चार्ज अप कर सकते हैं खुद को? ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी क्वेरी की भाई हाउ टू गेट आउट फ्रॉम दिस मोनोटोनस लाइफ, बट वी वांट टू बी ए सीए, कि आप सीए बनना ही चाहते? यस, नहीं मैम सीए तो बनना ही है। बनना चाहते, नाम के आगे यस जायसवाल के आगे सीए यस जायसवाल लिखना है आपको, है ना? यस मैम डेफिनेटली। नागार्जुन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक मिनट, नागार्जुन जी। हाँ मैडम, सॉरी मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा चले गया था पीछे। नागार्जुन जी मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या है ऑडियंस ओनली सीए नहीं है, बाकी सब सीए तो आपको बिल्कुल पहचानते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन दे दोगे तो काफी अच्छा होगा। जो अदर देन सीए मैटरनिटी वाले हैं ना, वो भी आपको जानने लग जाएंगे फिर। चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। आई एम नागार्जुन राव आकुला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, FAFD, BCom, pursuing LLB final year, and serving Maharashtra State Electricity Board as a Class 1 officer in Aurangabad, Maharashtra. This is a brief introduction of myself, and also I am a national level para swimmer.
and recently I got silver medal in national swimming competition held at Bangalore. ये एक छोटा इंट्रोडक्शन था मेरा. सारिका मैडम, यस 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 नागार्जुन जी बताइए. ये सेशन अटेंड करने का सबसे प्राइम रीजन है जो पीछे मेरे बैठे हैं मेरे मिसेस. वो मैं उनको कई सालों से, जब से शादी हुई तब से मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि सीए करो, आप पढ़ाई करो. तो वो बोल रहे हैं कि मेरी इंग्लिश कच्ची है, मेरा से हो नहीं पाएगा. मुझे लगा आप ऐसा बोलेंगे कि मैं कई सालों से उन्हें जानता हूँ, शादी के बाद से उन्हें जानने लगा हूँ. जानना समझना तो मैडम मुश्किल ही है. अभी यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बोलूं ना, हम अकेले में बात कर लेंगे उस बारे में. और तो मैं ये सेशन प्राइमरीली मेरे मिसेस के लिए अटेंड कर रहा हूँ और उनको भी अटेंड करवा रहा हूँ. और पीछे जो छोटी बेटी है, मेरी छोटी बेटी है ये, वो भी अटेंड करना चाहती है. आपको उसको भी सीए बनना है आगे चल के. तो आपके तरफ से हमको, मतलब मेरे मिसेस को मोटिवेट करवाना है मुझे, और होते चलते मेरी बच्ची को भी मोटिवेट करवाना है. तो ये गुजारिश रहेगी आपसे, घर घर की मुर्गी दाल बराबर है, इसलिए मेरा काम नहीं चल रहा है. आप कर दें तो बहुत सुविधा हो जाएगी. थैंक यू नागार्जुन जी. सचिन पायगन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सचिन जी. पंकज जी, ऐसा तो नहीं कि लोगों को आप बिरयानी खिला खिला के बुलाए तो नहीं है? ऐसा लग रहा है मुझे. ऐसा नहीं है. मतलब बाकी जगह तो मैंने सुना था जूम मीटिंग में भी बिरयानी खिला के बुलाया गया, तो ये मुझे आज पहली बार पता चलेगा. नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बट पता नहीं. CA and देखिए students are सचिन more जी जाग गए interested in फाइनली. listening rather than पायगन, interaction. हाय मैम. हाय हाय. सचिन, आपने प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है? मैम मोटिवेशन के लिए. कैसा मोटिवेशन चाहिए आपको? किस लिए चाहिए आगे जाके कुछ करना तो. मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको? मैम अब मेरा बीकॉम चालू है, तो आगे क्या करना वो भी डिसाइड करना पड़ेगा ना. एमकॉम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है अभी? कुछ नहीं. तो मोटिवेशन किस लिए चाहिए? बीकॉम कंप्लीट करने के लिए चाहिए कि बीकॉम नहीं कंप्लीट करने के लिए चाहिए? बीकॉम कंप्लीट हो गया मैम मेरा. हाँ, आगे? अभी लॉकडाउन की वजह से कॉलेज तो चालू नहीं ना. मतलब मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ आपके दिमाग में क्या है, मोटिवेशन क्या होता है मुझे बताइए. मतलब आइडिया लोगों से कुछ तो भी मिल सुनने को कुछ मिलेगा, ठीक है. सुनील जी, जिनके पास गैलेक्सी A71 है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. बताइए सुनील जी. हाँ मैम, मेरा नाम सुनील है. मैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और मुझे जरूर बताइएगा आप बिरयानी खा के तो नहीं आए यहाँ पे. नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं. पंकज जी ने नहीं दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, मेरा नाम सुनील जगताप है. मैं औरंगाबाद से हूँ. मेरा सिर्फ वो टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स का, मैं एक ही फील्ड में काम करता हूँ. बाकी इनकम टैक्स जीएसटी का नहीं करता हूँ. वही मुझे लगा. क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीकॉम हुआ है मैम, सिर्फ मैंने. बीकॉम हुआ है. क्या करते हैं आप? पीडीएस रिटर्न्स या फिर डिमांड्स के वगैरह काम करता हूँ. आज प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया आपने? वही प्रवीण सर का आया था, तो कि बोले बाबा सारिका आपका बोला उन्होंने, तो बोले एक बार देख ले बोले. ठीक है, चलेगा. ठीक है. सीए दर्शन, हु इज सीए दर्शन? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आप अनम्यूट ही है शायद. हाँ. नेक्स्ट इज निखिल गोयल. निखिल लोया, सॉरी. ओके, दर्शन भाई आप अनम्यूट हो. ऐसा होता है ना आपकी अदालत में, ऐसे हाजिर हो. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग निखिल जी, बताइए अपने बारे में बताइए. मैम मैं निखिल लोया, सीए फ्रॉम औरंगाबाद. मोटिवेशन का तो ऐसा है मैम कि आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, मोटिवेशन जरूरी होता है अगली स्टेज में जाने के लिए. सो द पर्पस ऑफ अटेंडिंग दिस इज द सेम कि आपको एक कुछ नया पॉइंट क्लिक होता है जब भी किसी से आप सुनते हो. तो वही एक पर्पस है कि
कुछ नया। बैच के सीए हैं निखिल जी? सॉरी, बैच कौन सा है? विच ईयर पास आउट ईयर ऑफ सीए? 2008। 2008। मैंने 2008 में शुरुआत की थी सीए की। अरे आप बाप रे। मुझे मोटिवेशन देंगे आज? नहीं नहीं मैम, वो तो आई एम नॉट दैट केपेबल बेसिकली। नहीं नहीं, हर कोई कैपेबल, आज वो हम समझते कि कैसे हम कैपेबल हैं या कैसे नहीं है। नुपुर भांगड़, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। और नेक्स्ट इज अनुज चांदक। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग नुपुर, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर कैमरा ऑफ रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग सुन रहे हैं। या आजकल के टाइम में मोटिवेशन इज सो मच फ्रीली अवेलेबल कि भाई हम सोचते रहे कान तक पहुंच जाएगा। आराम की चीज कभी हजम नहीं होती, आप समझ लीजिए। तकलीफ से पाई हुई चीज ही आपको हजम होती। तो आप सच में चाहते हैं कि कोई चीज आपके साथ जाए, आप समय तो दे रहे हैं लेकिन आपके साथ दिमाग में भी जाए, आपकी जिंदगी में चाहे, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं आराम से खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कान में भी सुन लेंगे, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं आएंगे। ये आपके 25-30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। मत लॉग इन कीजिए, लॉग आउट करके चले जाइए। सच में ये सच्चाई है। हर वो चीज जिसकी कदर ना हो उसकी कोई यूज नहीं हो पाती। हम लाइफ में हम कभी उसको यूज ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, जब हमारे माँ बाप हमको एक पेंसिल देते थे, एक पेन देते, तो उसकी वैल्यू जो हम समझते थे आज हमारे बच्चे नहीं समझते, क्योंकि उनके मांगने से पहले में पहुंचा देते। एक स्कूल बैग की कीमत जो हम समझते हैं हमारे बच्चे नहीं समझते। आई एम सो सॉरी, आज बहुत अर्जेंट काम चल रहा है ऑफिस से। नो इश्यूज मैम, नो इश्यूज। पकड़ लिया मैडम ने प्रवीण एक एक को। नहीं मैडम, मैडम ऐसी आईआरएस नहीं है भाई, अपन सीए तो मैडम भी आईआरएस है। यहाँ पे भी रेड कर दी। नहीं लेकिन गोइंग गुड, यानी व्हाट आई फील ना, सेशन ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। गुड गुड। मैडम यहाँ पर भी रेड कर दिया आपने, एक एक को पकड़ रहे हैं। देखो हमारा तो ये कि कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में पंकज जी से वसूल लेंगे और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के नाम पे। नाउ टर्न नुपुर, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सेशन? नुपुर जी बताइए प्लीज, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए नुपुर जी। नहीं मैंने पहले ही बोल दिया, एक तो मैं मारवाड़ी, ऊपर से सीए, ऊपर से आईआरएस। वो बोलते हैं एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा और ऊपर से आप और नमक मिर्ची और डाल दीजिए, तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आप सोचेंगे मैं अकेले यहाँ मेहनत करूं और आप लोग आराम की जिंदगी चाहिए, ये तो हम नहीं देख पाएंगे। वैसे भी हमारा नाम बहुत बदनाम रहता है। यस नुपुर। गुड इवनिंग मैडम, मैं नुपुर बांगड़, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मोटिवेशन तो डे टू डे लाइफ में चाहिए ही। मोटिवेशन तो बहुत जगह से मिलती है, बट सेल्फ मोटिवेशन तो चाहिए। तो वो ऐसे ही सेशन से डे टू डे में थोड़ी सी पुशअप के लिए जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग उठना, उठ के एक्सरसाइज करना एंड ऑल, उसके लिए भी बहुत जरूरी है मोटिवेशन। तो ऐसे कुछ सेशन सुनने से ही वो थोड़ा सा पुशअप हो जाता है। मैं खुद ऐसे सेशन की तैयारी में हूँ या सुनने की तैयारी में कि सुन लेने से मेरा पुशअप ही कंप्लीट हो जाए, मुझे पुशअप भी करने की जरूरत नहीं। आप पुशअप करने के लिए रखती हूँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे पुशअप भी ना करना पड़े। नहीं, माइंड पुशअप करने के लिए मैं तो फिजिकल पुशअप भी हो जाए कोई मोटिवेशन सुनने से। तो अगर आपको कुछ मिलता है ऐसा वीडियो तो प्लीज शेयर कर दीजिए कि मैं सुबह लगा दूं और हमारा जिम एक्टिविटीज भी कंप्लीट हो जाए। नहीं, जिम एक्टिविटी करने के लिए नहीं, बट माइंड पुश करने के लिए तो बहुत ज्यादा चार्ज करना जरूरी है। मैं यही बता रही हूँ कि आपकी कंडीशन मेरे से बेटर है। मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि माइंड तो चार्ज होता नहीं है, बॉडी भी ऐसा लगता है कोई और मेरे बदले कर दे। तो हम धीरे धीरे समय के साथ कितने ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। हमारे पास आप जैसे ऑप्शन है मैडम।
अनुज जी बताइए, अनुज जी अपने बारे में बताइए। अनुज भैया। जी नमस्ते मैम। यस नमस्ते। मोटिवेशन ये मेरा पहले से इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन से ही मैं आज सीए हूँ, ये मुझे मेरी ये धारणा है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक मोटिवेशन का रोल है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि कोई पर्सनालिटी आज, अभी मुझे 15-17 साल हो गए सीए प्रैक्टिस में, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी 100% परफेक्ट नहीं है। तो उसी मोड पे जब आप आईआरएस हो, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके उस लेवल पे आप गए हो। बिकॉज हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन हम आईआरएस नहीं बन पाए। तो डेफिनेटली यू हैव एन अपर एज, और आप में कुछ ना कुछ ऐसे गट्स है जिसके लिए मैं यहाँ आपको सुनने आया हूँ। और भी आप भी अपने बारे में बता सकती। मेरे लिए मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान अपने आप में एक प्रेरणा होती है। वो अलग बात है कि कुछ फ्रंट लाइन में दिखाई दे देते हैं और कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं अभी कैमरा ऑफ करके। ऐसा है कि हर कोई अपने आप में एक प्रेरणा है। वो अलग बात है कि आप लोग बोलते नहीं, मुझे फोर्स करना पड़ रहा है आप लोगों से बुलवाने के लिए। तो आप लोग की लाइफ में भी बहुत बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिससे आप अपने आप को अपनी पीठ थपथपाते होंगे कि यार मैंने बहुत अच्छा किया। अगर किसी के साथ ऐसी कोई इंसिडेंट्स हुई हो तो आप बता सकते। जरूरी नहीं कि आप मोटिवेशन के बारे में बताएं। तो मुझे भी प्रेरणा मिले, मतलब मैं भी तो कुछ घर लेके जाऊं ना। खाली दे के जाने में विश्वास तो हम नहीं रख सकते। सीए है भाई अल्टीमेटली। ये से शुरुआती पीरियड में मैडम मेरे साथ हुआ था जरूर, कि औरंगाबाद में फर्स्ट ईयर कॉलेज करने के बाद जब मुझे पता चला कि उस पीरियड में 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस पीरियड में ऐसा लगा कि यहाँ मैं रहूंगा तो शायद मैं सीए कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। उस पीरियड उस टाइम में यहाँ इतने क्लासेस अवेलेबिलिटी या जो सपोर्ट चाहिए था सीए कोर्स के लिए, जैसे पूना में था। तो मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि सेकेंड ईयर हम पूना जाना चाहिए। तो मैंने पूना जाने का निर्णय लिया। और कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज होती थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो यूनिवर्सिटी चेंज के टाइम थोड़ी सी तकलीफ होती थी। तो फिर भी मैंने डेयरिंग करके मैं बोला चलो वहां जाके देखेंगे, जो भी होगा हम उसके लिए आगे की तैयारी करेंगे, लेट अस सी। तो वहां जाने के बाद लेट होने के कारण मुझे लाहौटी हॉस्टल में एडमिशन मिला नहीं वहां पे। तो हॉस्टल एडमिशन नहीं मिला तो हमने एक रिलेटिव के पास मैं एक आध महीने रहा। लेकिन अब कितने दिन वहां रहेंगे। तो फिर बाद में जब एक जगह नजदीक मिली तो इट वाज एन टाइप ऑफ गैरेज। तो उसने मुझे बताया कि ये गैरेज है और आपको चलेगा क्या। तो मैं बोला अभी एटलीस्ट कहीं ना कहीं रहने की जगह चाहिए, चलो हम रहेंगे। तो 6 महीने आई लिटरली स्टेड इन दैट टाइप ऑफ गैरेज। और उसके बाद फिर मुझे 6 महीने के बाद हॉस्टल में एडमिशन मिली, और देन थोड़ा सा कुछ ऐसा रिलीफ हुआ कि आगे चल के तो ऐसा लगा कि चलो, मैं उस टाइम पीछे हट जाता था कि नहीं यार यहाँ बहुत तकलीफ है, रहने की सुविधा नहीं है और कोई भी सुविधा नहीं। तो मैं आज ये स्टेज पर नहीं होता था, आज सीए नहीं बन पाता था। तो छोटी छोटी चीजें होती है ऐसी कि कई हर एक के लाइफ में, जैसे आपने बताया कि उस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ता है और आगे जाने की एक उम्मीद रखना पड़ता है। बस यही था मेरा एक। बहुत बहुत अच्छा बताया अनुज जी। मतलब वो तो पंकज जी और प्रवीण जी ने मुझे गलती से बुला लिया। औरंगाबाद में ही आपके महाराष्ट्र में इतने टैलेंट है, आप उनको मौका नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। चलो, जिस तरीके से मूवी आती है, कोई भी मूवी आती है, तो मूवी रिलीज होते ही लोग थिएटर नहीं पहुंच जाते देखने के लिए। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को एक ट्रेलर रिलीज करना पड़ता है कि भाई ये मूवी का ये ट्रेलर है, इसे देख के आप अट्रैक्ट होते हैं, अरे यार मूवी के अंदर क्या होगा। तो मैं इतनी सोई हुई जनता को बहुत कोशिश कर लिया, मैं जगा नहीं पा रही हूँ। मैं एक ट्रेलर के लिए कहानी सुनाती हूँ, अगर उसके बाद नहीं जागी तो मैं हार के चले जाऊंगी, अगर जाग गई तो हम कंटिन्यू करेंगे सेशन। ठीक है, देखते हैं। अगर आज सारी जनता नहीं जागी, अगर ये 30 या 33 लोग भी नहीं जगा पा रहे तो मेरा सेशन वेस्ट है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती। कहानी तो हम स्कूल के समय सुनते थे, ठीक है। और अगर आप लोगों को सुनना है तो अपने हाथ रेज कर सकते हो, तो मैं समझ पाऊंगी कि आप लोगों को इंटरेस्ट है किसी को। हमारी जिंदगी में हम आधे से अधिक समय इस कंप्लेन में गुजार देते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे में ऐसा क्यों है, या मेरे पास ये है वो क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, काश मैं 4 साल पहले सीए बन जाता, काश मैं टॉपर हो जाता, काश मेरी हाइट ज्यादा होती,
काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मैं सिटी में पैदा होता, काश मेरी फैमिली ऐसी होती, काश मेरा एक बड़ा भाई होता। बहुत सारे काश के साथ हम जीते हैं और उसी कंप्लेन के साथ हम यही करने रह जाते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ज्यादा अच्छा जी पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी जिंदगी कहाँ खो रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कहानी मैं बहुत बार सुनाई हूँ, कल भी मैंने कहीं पे सुनाया था, आप लोगों को फिर से सुनाती हूँ। एग्जाम्पल क्यों मैं कहानी सेम कहानी सुनाती हूँ, क्यों जो सबसे इजी चीज होती है वही डिफिकल्ट होती है। आपने सुना है जो सबसे इजी होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल, सेब रोज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें पता है कि सेब खाना अच्छा होता है, फिर भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं इससे ये नहीं कह सकती कि सेब मत खाइए, अंगूर खा लीजिए। मतलब सेब खाना, मुझे वही कहना पड़ेगा कि सेब खाइए। तो एक कहानी है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बार रिपीट की, फिर भी मुझे सुनाना पड़ेगा। मुझे पता है ये कहानी असर बहुत ज्यादा अंदर तक करेगी। एक कौवा है, आप सभी ने कौवा देखा होगा और बचपन से कहानियां भी सुनी होगी। एक कौवा था, वो अपनी जिंदगी से बहुत त्रस्त आ गया था, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते उसके लुक्स के कारण। बहुत काला है, बहुत कर्कश बोलता है, तो वो त्रस्त आ गया। उसने सोचा यार मेरी भी कोई जिंदगी ऐसा काला बनाया, ऐसा कर्कश बनाया, काश मुझे सुंदर बनाया होता, काश मुझे हंस के जैसे बनाया होता, लोग मुझे पसंद करते। तो वो तपस्या करता है भगवान की, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं चेंज हो जाऊं। और उसकी तपस्या से भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते मांग जो तुझे मांगना है। कौवा कहता है मुझे हंस बना दो, मैं खुश रहूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कहते हैं लो अभी बना देता हूँ, पर एक बार हंस से पूछ लो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। वो हंस के पास दौड़ के जाता है और पूछता है, हंस भाई तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? मस्त चल रही होगी ना, तुम तो कितने सुंदर हो। हंस कहता है ये भी कोई जिंदगी है? कौवा शौक हो जाता है कि हंस की जिंदगी भी खराब हो सकती है। बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? तो हंस कहता है ये भी कोई जिंदगी, एकदम सफेद बना रखा है, कोई भी मेरे साथ सेल्फी लेता है बैकग्राउंड में गायब हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता, सिर्फ सफेद ही सफेद, ये कोई जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जैसा व्हाइट बना दिया, मुझे मजा ही नहीं आता है। तब कौवा को समझ में आता है अच्छा हंस भी खुश नहीं है। तो वो पूछता है अच्छा ये बता तुम्हें किसके जैसे बनना है? बोलता है पैरट। क्या मस्त ग्रीन होता है, उसकी चोंच कितनी लाल होती है, सुंदर होता है, बनना है तो मुझे पैरट के जैसे बनना है, क्या जिंदगी हो जाएगी पैरट बनके। वो भगवान के पास दौड़ के आता है। कौवा कहता है भगवान जी मुझे हंस मत बनाओ, हंस कैंसल, मुझे पैरट बनाओ। भगवान जी कहते हैं लो अभी बना देता हूँ, एक बार पूछ तो लो पैरट खुश है या नहीं है। वो दौड़ के पैरट के पास जाता है और पूछता है, कौवा पूछता है पैरट से, भाई तू खुश तो है अपनी जिंदगी से? पैरट कहता है ये भी कोई जिंदगी है? पेड़ पे बैठता हूँ, गायब हो जाता हूँ, पता नहीं चलता पत्ती कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लोग सेल्फी खींचते हैं, मैं दिखाई ही नहीं देता, ये कोई जिंदगी है? कौवा शौक की पैरट भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तो कौवा कहता है कि तुम्हें किसके जैसे बनना है? बोलता है मोर, मुझे पिकॉक बना दो। क्या सुंदर पंख होते हैं उसके, कितने लंबे पंख होते हैं, इतने कलरफुल पंख होते हैं। लोग तो मोर पंख भी अपने घर पे रखते हैं। काश मेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाती, लोग मेरे पंख अपने घर पे रखते, क्या जिंदगी होती। कौवा को लगता है अरे यार सबसे बेस्ट तो मोर है, मुझे मोर के जैसे बनना है। वो दौड़ के आता है भगवान जी को, बोलता है भगवान जी पैरट कैंसल, मुझे पिकॉक बना दो। भगवान जी कहते हैं अभी बना देता हूँ, पर एक बार पूछ तो लो वो भी खुश है कि नहीं। वो दौड़ के पिकॉक के पास जाता है, कहता है पिकॉक कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मस्त हो गए, तुम तो राजा हो, कितने सुंदर हो। पिकॉक कहता है ये भी कोई जिंदगी है? कौवा शॉक हो जाता है कि मोर ऐसी लाइन बोल रहा है। बोलता है ये भी कोई जिंदगी है? इतने सुंदर पंख बना दिए, लोग मेरे पीछा ही नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे घर से निकलते तो मुझे डर लगता है कि वो वापस आएंगे कि नहीं, लोग उसके पंख के कारण उसे ले तो ना जाए। मेरी जिंदगी को मैं एंजॉय नहीं कर पाता इस सुंदर पंखों के कारण। काश मुझे एक सिंपल जिंदगी, सादी सी जिंदगी देता। काश मुझे भगवान कौवा बना के रखता, मैं खुशी खुशी से अपनी जिंदगी को जीता। कौवा शौक के कोई मेरे जैसे बनना चाहता है, मैं इतना लकी हूँ? वो बोलता है हाँ कौवा तुम बहुत लकी इंसान हो यार, काश मुझे तुम्हारी जैसी जिंदगी मिल जाती। कौवा दौड़ के आता है भगवान जी को, कहता है भगवान जी आपने मुझे जो बनाया बेस्ट बनाया, मुझे कुछ और बनना ही नहीं, मैं अपने आप पे बेस्ट हूँ। और हम अपनी जिंदगी में आधा टाइम ये सोच के निकाल देते काश मैं वो बनता, काश मैं वो बनता, और हम कुछ नहीं बन पाते। ये मेरी मूवी का ट्रेलर था। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो वीडियो पे आना होगा, नहीं तो मैं जा रही हूँ, पक्की बात है ये। पंकज जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, देखो
सीए दिमाग लगाया, आईआरएस दिमाग लगाया, मारवाड़ी दिमाग लगाया। अब और मैं औरंगाबाद को मोटिवेट नहीं कर सकती, अब मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। अब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो आई विल स्पीक, अदरवाइज तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैं शेयर करूं, मैं शेयर किया तो चलेगा? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो हमारा भी तो शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं। बोलिए प्रवीण जी, प्लीज बोलिए। मैम मेरा भी अभी पता नहीं मोटिवेशनल स्टोरी है या नहीं है, लेकिन ऐसा था कि 11th-12th मेरा साइंस था मैम, मुझे डॉक्टर बनना था। देखिए कुछ कुछ लोग जाग रहे हैं, मतलब पिक्चर का ट्रेलर उन्हें समझ में आ रहा है। प्रवीण जी आप अपनी बातों से उनको सुला मत दीजिएगा, देख लीजिए। नहीं मैम, मैं हार्डली 2 या 3 मिनट में मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये प्रवीण जी बीच में ऐड दे रहे, कभी कभी कुछ खराब ऐड आ जाता है, टेंशन मत लीजिए। प्रवीण जी आपको अच्छी से बताना होगा। तो 11th-12th में मैंने साइंस लिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। मेरे ही समय एंट्रेंस एग्जाम आया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेरा नंबर बीडीएस के लिए लगा, मुझे बनना एमबीबीएस था। मैंने सोचा ये साल छोड़ देते, नेक्स्ट ईयर रिपीट करेंगे तो एमबीबीएस लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर मुझे बीडीएस भी नहीं मिला, बीएएमएस मिल रहा था। मैंने साइंस छोड़ दिया, मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। जब बिजनेस किया तो पता चला यहाँ तो बहुत हालत खराब है। फिर मैंने पापा को बोला बीकॉम होने के बाद कि मैं सीए करूँ क्या? पापा बोले ठीक है कर ले। सीए करने में इंटर के लिए मुझे 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, मैं निकल नहीं रहा था। 3rd अटेम्प्ट मैंने डिसाइड किया दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, फॉर्चुनेटली मैं निकल गया। देन 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद मेरा फाइनल एग्जाम आया, तब घर पे कुछ बिजनेस था और ऑल ऑफ सडन मेरा नवंबर का अटेम्प्ट था, अगस्त महीने में पापा को हार्ट अटैक आया और वो बिजनेस देखने वाला कोई था नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको अभी पापा को रेस्ट देना पड़ेगा एंड आपको बिजनेस के पास भी ध्यान देना पड़ेगा और पापा को तो 100% रेस्ट देना है। अब मेरे दिमाग में एक ही था, मुझे अगर पास होना है तो नवंबर अटेम्प्ट ही पास होना है, और मुझे बिजनेस भी देखना था, पापा की हेल्थ भी देखनी थी, घर भी देखना था, अटेम्प्ट भी देना था। मैंने ऑलमोस्ट 14 घंटे स्टडी किया। मैंने जो होगा होगा, ये एक ही अटेम्प्ट में मुझे निकलना है, अदरवाइज मेरे पास चांस नहीं है। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बोथ ग्रुप निकल गए। सो दिस इज व्हाट माय शॉर्ट स्टोरी मैम। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। और मैंने ये सेशन क्यों आने के लिए हाँ बोला, मैं आपको बताती हूँ। बिफोर लॉकडाउन एक लेडी ने मुझे फोन किया था औरंगाबाद से। वो कुछ प्रोग्राम कर रही थी, कुछ चैरिटेबल प्रोग्राम कर रही थी, उनका कोई ग्रुप था, 23 लेडीज का शायद कोई ग्रुप था, और शी वाज इंसिस्टिंग मी कि औरंगाबाद आओ। मैं जनरली इस काम के लिए नहीं जाती हूँ, पर उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया, बहुत ज्यादा। आप विश्वास नहीं माने पाएंगे, उन लेडीज के ग्रुप ने इतना इंसिस्ट किया कि फाइनली मेरे पास समय का बहुत ज्यादा सुविधा नहीं हो रहा था। देन ऑल्सो आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद, मतलब हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बीच बीच में चेंज किया, डायरेक्ट कुछ फ्लाइट उस दिन अवेलेबल नहीं थी। और विश्वास नहीं मानेंगे, उन 23 लोगों के ग्रुप ने इतने बच्चों को हैंडल कर रही हैं। वो कुछ स्कूल को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए कुछ काम करते थे चैरिटेबल, उनके लिए उन्होंने मोटिवेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया था। छोटे बच्चे थे स्कूल के, मेरे ख्याल से ऑर्फनेज थे शायद, और दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। 23 लोग, 23 टिपिकल फैमिली, मारवाड़ी फैमिलीज की लेडीज। आप समझते हैं कि वो हर किसी को अपने घर जाके वापस से खाना बनाना है, सुबह से वो निकली हुई थी, रात का डिनर बनाना है, तो वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और वो बाहर निकल के एक एक काम कंधे से कंधे मिलाकर करे। दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मैं सोचती हूँ कि औरंगाबाद के लोगों में अलग ही एनर्जी है, पता नहीं आप लोग क्यों उनका नाम आज खराब कर रहे हैं। तो अब तो मैं यही कहूंगी, पंकज जी, क्या होता है कवि सम्मेलन जब होता है, मैंने लाइव देखा है, जब कोई कवि कविता सुनाता है और लोग सोते रहते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है, और धीरे धीरे कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ 10 या 15 लोग बैठ जाते हैं जो एक्चुअल में कविता सुनना चाहते हैं। एक्चुअल में दे आर द रियल श्रोता बोल सकते हैं। तो कभी बोलते हैं मैं ये 15 लोग से भी खुश हूँ, चाहे मुझे 15,000 लोग ना मिले, लेकिन जो जेन्युइन लोग मिले। तो अब मैं सच में जेन्युइन लोग चाहूंगी, जिन्होंने भी अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है और अनम्यूट है, आप उनको रिमूव कर दीजिए। ये मेरे तरफ से डायरेक्शन है। हमें 15 लोग भी चलेंगे, 10 लोग भी चलेंगे, लास्ट में पंकज जी और प्रवीण जी है, हम बिरयानी खाते खाते भी मोटिवेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम लेकिन जेन्युइन लोगों के साथ करेंगे, बाकी लोग को आप रिमूव कर दीजिए। मेरे तरफ से ये डायरेक्शन है। कोई भी अनम्यूट दिखा या कोई कैमरे के साथ ऑफ दिखे, आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्दी नहीं चाहिए, दर्दी लोग चाहिए, ऐसा है। सॉरी गर्दी नहीं चाहिए, दर्दी लोग चाहिए, ऐसा है। दर्दी हो या फिर जो भी जेन्युइन है, आपको मैं समझा के थक गई, अभी नहीं जा सकती
हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत है, हम लिमिटेड लोगों के साथ अभी हम प्रोग्राम करेंगे। तो आई विल फील बेटर कि ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है, हम इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करें औरंगाबाद के बारे में, आप बताओ वहाँ की हालचाल कैसे, यहाँ की हवा पानी कैसी है ना। तो कोई दिमाग में किसी की क्वेरी आ रही तो आप टाइप कर सकते हो, तो मेरे दिमाग में मुझे टॉपिक मिलेगा। अब क्या होता है, नेता लोग होते हैं या मैं अगर होती तो स्पीच लिख के लाओ, अब मुझे वो स्पीच लिखना आता नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे टॉपिक मिलेगा, अदरवाइज मैं लिखा लिखा है पढ़ के चले जाऊं, आज हमारे राज्य पे ऐसा हुआ, आज हमारे यहाँ ऐसा हुआ, करके चले जाओ। अब ऐसा नहीं है तो आप इस चीज के बारे में बताओ या इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस नॉट थिंक इज ए वन वे कम्युनिकेशन, लेट अस थिंक ये टू वे कम्युनिकेशन है, हमारे बीच में एक डिस्कशन है, तो वी विल एंजॉय दिस मोमेंट। उसके बाद तो अपनी डेली रूटीन चालू होने वाली। अच्छा, एक क्षण किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें डेली मोटिवेशन कैसे मिले, इसके ये एक सवाल याद आ रहा है। मैं पंकज जी से एक सवाल पूछती हूँ। पंकज जी, आप मुझे बताइए, आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको दांत में कुछ पेन था, तो आप अपने दांत दिखाने गए थे, तो डॉक्टर साहब दांत का इलाज कर रहे थे, तभी आपको पता चला कि आपकी आंखों में भी कुछ सर्जरी या ट्रीटमेंट करवाना है, या उसमें कुछ नॉलेज चाहिए आपको, उसके बारे में उनको गाइडेंस चाहिए। तो जब आप दांत का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उस डॉक्टर से आप अपने आंख का ट्रीटमेंट करवाएंगे क्या? पंकज जी, नहीं हाँ ना पे नहीं 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 करवाएंगे। आपके दांत और आंख के बीच में एक बिलात बोलते हैं या एक उंगली का भी फर्क नहीं है। एक दांत का डॉक्टर, एक आंख का डॉक्टर, क्या दांत के डॉक्टर से आप आंख का इलाज करवाएंगे क्या? नो। क्यों नो, नहीं करवाएंगे? क्योंकि दोनों पार्ट्स अलग अलग है, दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग। तो वो जो डॉक्टर है बेसिक एमबीबीएस तो किया ही है ना, आई के डॉक्टर ने भी एमबीबीएस किया होगा, दांत के डॉक्टर ने भी एमबीबीएस किया है, फिर भी आप अपनी आंखें नहीं दिखाएंगे। दोनों में तो डिफरेंस इतना ही छोटा सा ही है। It's not about the distance, it is about the part and the complications associated to it. एग्जैक्टली जब आप अपनी जिंदगी के इतने छोटे से डिफरेंस के चीजों में भी एक एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर को भी आप अपनी आंखें या दांत एक साथ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट नहीं है। जो दांत का एक्सपर्ट है वो आंख के मामलों में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए तो नहीं दिखाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, हम अपने जिंदगी के सारे सवालों के जवाब एक आम आदमी से क्यों ले लेते हैं? हम बहुत बार बोलते हैं लोगों ने ऐसा मुझे बोला तो मैंने किया। एक छोटी सी समस्या के लिए आप दांत के डॉक्टर से, आंख का डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम दूसरे की के बोले पे क्यों करते हैं? उसे तो वो तो बेसिक एमबीबीएस भी नहीं किया है, लेकिन हम आधी जिंदगी इस बात पे चलते कि लोग क्या कहेंगे। वो एक्सपर्ट है क्या आपकी जिंदगी के बारे में? यू आर द ओनली एक्सपर्ट ऑफ योर लाइफ, कोई और है ही नहीं। चलो आंख और दांत और कान के लिए आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए तो वो एक्सपर्ट है ही नहीं। और कहीं फिर भी कोई एक्सपर्ट है तो आपके मदर एंड फादर या आपकी फैमिली मेंबर। हम उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। लोग बोलेंगे तो हम मान जाएंगे, लेकिन वही दांत और आंख का इलाज नहीं करवा रहे, लेकिन अपनी जिंदगी उठा के पूरी दे देते हैं और लाइफ टाइम हम परेशान होते हैं। कभी भी अपनी जिंदगी के डिसीजन दूसरों को मत दीजिए। देना है मैक्सिमम अपने घर के पार्टनर को दीजिए, अपने मम्मी पापा को दीजिए। नागार्जुन को कम से कम घर की मुर्गी मत समझ ले, मैं आपकी वाइफ को रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आप अपने घर के मेंबर को जिस दिन रोल मॉडल समझना शुरू कर देंगे, यू आर द बिगेस्ट रोल मॉडल। और जब उनकी बातों को मान के चलेंगे, आपको जिंदगी भर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि यार लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे। इसलिए कभी भी कोई डिसीजन लेना ना तो आपके प्लस माइनस सोच के करिएगा। जैसे मैंने सीए से आईएएस किया, तो लोग मुझे बहुत कुछ बोले, और वो लोग मेरी लाइफ के तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, तो मैं उनके कहने पे अपना डिसीजन क्यों लूं? सुनो सबकी, करो अपनी। मेरी बात किसी के दिमाग में जा रही है, ऊपर से उड़ के जा रही है एयरपोर्ट से? मैम एग्जैक्टली सेम चीज मैंने 6-8 महीने पहले कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसीजन लिया। कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे थे उस डिसीजन के बारे में, कुछ लोग निगेटिव बोल रहे थे, बट देन मैंने सोचा भाई अपनी जिंदगी है, अपनी कश्ती है, अपने को संवारना है, लोग नहीं आने वाले हैं। एंड
I took that decision from my angle, from my family's angle. And today, after 4 or 5 months of that decision, I conclude that my decision was correct. देखो, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये हम सोचने लग जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? उनके पास एक ही तो काम है सोचने का, हम करने में लग जाते हैं। कभी अपने आप को इसलिए मत रोक देना कि लोग क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा। ये सोसाइटी को मैंने अपनी आंखों से चेंज होते हुए देखा है। मैंने वो लाइफ जी है जिस समय मुझे फोटो फ्रेम से अलग कर दिया जाता था। जब मैं किसी फैमिली फोटो पे रहती थी तो मुझे खसका के फोटो खींचा जाता था, और आज वही सोसाइटी मुझे बीच में रख के फोटो खींचती कि आपके साथ फोटो लेना हमारे लिए गर्व की बात है। वही सेम इंसान, पर मैं उनके मुंह पे उनको नहीं बोल सकती कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था 5 साल, क्योंकि उस समय ऐसा चल रहा था, उस समय इरा ऐसा चल रहा था, सोच ऐसी थी। उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो तब भी गलत नहीं, आज भी गलत नहीं, तो कौन गलत होता? अगर मैं उनके इग्नोरेंस से अपने आप को हट करके पीछे रख लेती तो सिर्फ नुकसान मेरा होता, उनका नहीं होता। लोग तो पानी के बहाव को से, तो देखो, पानी के बहाव में बहती हुए पानी में एक मुर्दा लाश भी बह जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब बड़ी होती है जब अगेंस्ट द पानी आप चलते हैं। तो आपको मुर्दा लाश बन के जिंदगी जीना है कि आपको अपने प्रभाव से जीना है, ये आपको डिसाइड करना है। आसान जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। आप खुद देखेंगे, आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, आपने जो सीखा है, आपके बच्चे उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रगल देखा ही नहीं है। हमने पहले से उनकी डिमांड पूरी कर दी है। हमें पता है एक कॉपी की महत्व क्या होता है, हमें पता है एक पेन का महत्व क्या होता है स्कूल पे, हमें पता है टीचर का डांटना क्या होता है, हमें पता है एक नंबर कम आने से उसकी वैल्यू क्या होती है, क्लास में इंसल्ट क्या होती है, हमें पता है। हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे वो लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं, एक्सेस हम लव देते हैं। तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज हम सीख पा रहे हैं। हमारे नेगेटिव, हम जितना स्ट्रगल करते हैं हम अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक कहानी और याद आ रही है अभी। एक मूर्तिकार था, वो पत्थर से मूर्ति बना था। ये मेरा सेकंड ट्रेलर है, दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद जो भी ये वीडियो वगैरह नहीं ऑन करेगा वो तो पक्के से जाएगा, और अगर नहीं जाता तो पंकज जी मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। दिस इज योर, पंकज जी को नहीं मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई बस देखते रहे सुनते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक मूर्तिकार था जिसका काम था पत्थर से मूर्तियां बनाना। तो एक पुजारी आता है, उसे 2 पत्थर देता है, कहता है मूर्तिकार इस 2 पत्थर में से तुम्हें जो पसंद आए, जैसा समझ में, एक भगवान की मूर्ति बना दो और मैं शाम को लेने आऊंगा। तो मूर्तिकार ठीक है मैं बना देता हूँ। तो वो पहला पत्थर पकड़ता है और उस पर हथौड़ी मारता है, तो पत्थर से आवाज आती है, भाई रुक जा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं पत्थर की आवाज नहीं, मैं हथौड़ी का दर्द नहीं सहन कर सकता, प्लीज मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मूर्तिकार कहता है ठीक है नहीं बनाता। उसने दूसरे पत्थर को पकड़ा, उस पे हथौड़ी चलाई और उससे पूछा भाई मैं तेरी मूर्ति बनाऊं या नहीं बनाऊं? तो अंदर से आवाज आती है बना लो, मुझे थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अच्छी से तरासा जाऊंगा। कोई बात नहीं आप बना लो, एक ही बार तो दर्द सहना है, सह लेता हूं। शाम को पुजारी वापस आता है, मूर्तिकार से पूछता है मूर्ति तैयार है? मूर्तिकार कहता है हाँ तैयार है, ले जाओ। तो वो मूर्ति तैयार, मूर्ति भगवान की मूर्ति ले जाता है और जाते जाते बोलता है वो जो सेकंड पत्थर था वो भी दे दो। मूर्तिकार कहता है उस पत्थर का क्या करोगे? तो पुजारी कहता है इस मूर्ति की तो मैं पूजा करूंगा, मंदिर में रखूंगा, और जो सेकंड पत्थर है उसमें मैं रोज नारियल फोड़ूंगा। तो जो पत्थर अपने आप को मूर्ति बनाने से रोक रहा था, वो सोच रहा था मैं अपने आप को दर्द से बचा लूंगा, अब जिंदगी भर उस पे नारियल फूटेगा, जिंदगी भर उस पे चोट लगेगी। और जिस पत्थर ने एक बार दर्द सह लिया, जिंदगी भर उसकी पूजा होगी। तो जो आप लोग हैं या मैं भी हूं या कोई भी है जो एक बार दर्द से भागेगा, उसे जिंदगी भर दर्द सहन करना है। ये डिसाइड आपको करना है कि एक बार सहना है या बार बार सहना है।
ये मेरा सेकंड ट्रेलर था, दिस इज द लास्ट ट्रेलर, और मेरे ख्याल से अभी हमें मूवी भी खत्म करनी चाहिए। पंकज जी, आप लोग का प्रोग्राम का टाइमिंग आई डोंट नो कहाँ तक है। मैम आप बोल सकते हैं, नो इश्यूज। मुझे तो पता है भाई, पैसे लग नहीं रहे हैं। हाँ, आराम से ऐसा सुन नहीं रहे हैं है। आप लोग। हाँ, और रेस्पॉन्ड आ नहीं रहा है, इश्यूज तो मुझे होने चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, रूपाली जी आप बताइए, कुछ अपने बारे में शेयर करना है, आपके फियर के बारे में, या आपके ये प्रोग्राम से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है कि उड़ जा रहा है, बता सकते हैं। देन आई विल आस्क टू श्वेता, सीए श्वेता। पहले रूपाली बोत्रा। एक मिनट रूपाली, अनम्यूट करता हूँ, एक मैं मिनट। कर दिया, मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके ओके। यस, गुड इवनिंग सारिका मैम। फॉर्चुनेटली मुझे आपको दूसरी बार सुनने मिल रहा है। जियो कॉन्फ्रेंस में मैं बॉम्बे आई थी, वहां पर आपको और विराट सर को सुना था मैंने। ज्यादा कौन बोल हेलो। रहा था दोनों में? Definitely मैं ही बोलूंगी। वो इस प्लेटफॉर्म पे बोलना रिस्की हो जाएगा मैम। नहीं नहीं, पत्नी का बोलने का अधिकार ही होता है। मेरे पति तो अपना समय भी मुझे दे देते उठा के। सही है, सही, और पत्नियों को ही ज्यादा बोलना चाहिए। तो मैम बस इतना ही है कि बीइंग फीमेल, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इतनी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमें हमेशा ही मोटिवेटेड रहना पड़ता है। हम सारे रोल्स अच्छे से प्ले कर सके, ये जो हमारा बैक ऑफ द माइंड कहीं तो भी रहता है, वो फुलफिल करने के लिए शायद। एंड मेरी छोटा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से ये है सबके लिए कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि मैं शादी के बाद सीए कर सकी। माई इन लॉ सपोर्टेड मी इस तरीके से कि मैं शादी के बाद, बच्चे के बाद भी मेरा सीए कंप्लीट हुआ है। सो आई एम फॉर्चुनेट रिगार्डिंग दैट। और यही चीज मैं सब फीमेल मेंबर्स को बोलती हूँ जब भी मिलती हूँ कि आप जो मतलब नई लड़कियां होती हैं और सीए नहीं कर पाती हैं, शादी हो जाती है, तो कहीं तो भी आ जाते हैं कि हम शादी के बाद कैसे करें। बट इट इज लाइक आपको जो सपोर्ट है फैमिली का, उसको साथ में लेकर आपको बैलेंस कर कर ही करना होता है। एंड ये चीज हमने आपसे बहुत सुनी थी बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में। और जैसे मैंने बोला कि हाँ, रोज सुनो तो रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता ही है, और हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज्यादा एक फीमेल के लाइफ में जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोला रूपाली जी आपने। मुझे ये मौका मिला आपको सुनने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। ये प्रवीण जी तो बुलाते नहीं हमें सबको सुनने के लिए। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सीए श्वेता भारतीय। यस श्वेता जी बताइए। हेलो मैम, हाउ आर यू? बढ़िया, अभी तक तो अच्छी हूँ मैं, अभी पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। सब अच्छा ही रहने वाला है मैम। मैम फॉर्चुनेटली ऐसा है कि मैं मेल फीमेल कैटेगरी में रखने का मुझे बहुत मौका नहीं मिला, जब तक एक मातृत्व नहीं मिला जब तक। अदरवाइज मैं अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करती हूँ, और शायद घर में भी शुरू से ऐसा ही ट्रीटमेंट है। लड़की है, लड़का है, बहू है, ऐसा कभी ट्रीटमेंट नहीं मिला। बच्चे हैं, और यहाँ पे भी शायद ससुराल में भी ऐसा ही ट्रीटमेंट है। बच्चे हैं, मेरी सासू माँ मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। जब घर में खाना लगता है तो सबके लिए साथ में लगता है, बहू परसेगी, बहू बनाएगी, सबको खिलाएगी, ऐसा कोई ट्रीटमेंट घर में है नहीं। आई वाज सो फॉर्चुनेटेड। और मोटिवेटेड तो हर काम करने के लिए जैसे हर इंसान को होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, अपने वर्क को लेके, अपने पैशन को लेके, मैं उतनी ही मोटिवेटेड और पैशनेट हूँ। बैलेंसेस कुछ करने पड़ते हैं लाइफ में। बीइंग अ मदर, एक मदर का जब मदर बनी तब लगा फीमेल वाला पार्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बीइंग अ मदर मुझे बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता था कंपेयर टू द फादर, बट दैट आई लव इट। वो मैंने एंजॉय किया वो पीरियड। तो आपको, आपके ग्राफ को देख के, आपको सुन के और लगा कि फीमेल और भी चैलेंजेस रहते हैं, बट फॉर्चुनेटली मैंने वो सारे चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं। So I just wish and say all my female colleagues कि अपने दिमाग से वो खुद का अगर जेंडर डिफरेंस हटा दिया ना, being a male female वाला, if we treat ourselves equally everybody else will। क्योंकि जब हम जाते हैं, हम खुद को ही फीमेल का एक टैग साथ में लेके जाते हैं, तो ट्रीटमेंट वैसा ही मिलता है। जब हम हमारा ही टैग हटा के जाते हैं, we are a chartered accountant, मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कुछ नहीं है। If I remove the tag from myself, I'll be treated equally। बहुत बहुत अच्छा सीता जी बोला। इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती हूँ कि एक अप्रोच भी हो सकती, लाइक आई फील प्राउड माई सेल्फ दैट आई एम अ वुमन। मेरे अंदर बहुत
गर्व होता है कि मैं एक वुमन, मुझे लगता है शायद एक मेल होती तो उससे ज्यादा अच्छा हुआ कि गॉड ने मुझे वुमन बनाया। कि इसके लिए कहानी और एक याद आ जाती है, ये प्रवीण जी के ससुराल वालों ने मुझे बताई थी इसलिए मुझे याद आ गई। जब प्रवीण जी स्टूडेंट थे, प्रवीण भांगड़ जी ना, तो वो सोचते थे, उनको ना मर्सिडीज कार चलाने की बहुत इच्छा थी, तो वो सोचे कि सीए बन जाऊंगा, शादी हो जाएगी, दहेज में मर्सिडीज कार मिल जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने सीए भी कर लिया, शादी भी हो गई, पर दहेज में मर्सिडीज कार नहीं मिली। फिर थक हार के मेहनत करके उन्होंने पैसे जमा कर करके आईटीआर फाइल किया, इतना काम किया, सुबह शाम काम किया, फिर पैसे जमा किए और एक मर्सिडीज कार खरीदी। अब वो खुद की मेहनत की कार थी, दहेज की कार होती तो थोड़ा कम केयरफुल होते, लेकिन खुद की मेहनत की उन्होंने कार खरीदी। तो वो क्या किए, उस कार को लाके अपने गैरेज में रख दिए, क्योंकि बहुत, जिसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उन्होंने वो कार को रोड पे नहीं रखा, चलाया नहीं कभी भी, सिर्फ लाया और सिर्फ गैरेज में रख दिया। फैमिली मेंबर को बोला कि दूर से देखना, टच भी मत करना, और सुबह शाम रोज एक बार धूप बत्ती दे देते थे, अगरबत्ती दिखा के आ जाते थे। आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसी मर्सिडीज कार या प्रवीण जी की एप्रिशिएशन करोगे, अप्रिशिएट करोगे कि भाई आपने वाह क्या कार लेके आई है, कोई तारीफ करोगे क्या? पंकज जी आप सच सच बता दीजिए, आप कैसा रिएक्शन दोगे ऐसी कार देख के? ऐसी कार का क्या फायदा अगर अपन अपने नियर एंड डियर वंस के लिए उसको यूज ना करें और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रादर देन नियर एंड डियर वंस। और वो खुद भी यूज नहीं करे, चलो नियर एंड डियर को टच करने देते तो खुद तो टच ही नहीं करते थे, तो आप उसकी वैल्यू करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? कार इतनी सुंदर, इतनी महंगी, इतनी चमचमाती हुई कार है, आप क्यों वैल्यू नहीं करेंगे? मैम, persons around us and अपना enjoyment of using that car is more important than the car itself. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कार को अगर वो बाहर लेके आते, रोड पे चलाते, तो आप ज्यादा वैल्यू करते उसकी rather than गैरेज में रखने से? नहीं, कार की वैल्यू से ज्यादा अप्रोच ऑफ व्हाट प्रवीण इज कीपिंग, उसका वैल्यू ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, निखिल जी आप बताइए, क्या आप ऐसी कार की वैल्यू करेंगे जो गैरेज पे है, प्रवीण जी गैरेज पे रखे, या ऐसी कार की वैल्यू करेंगे जो प्रवीण जी रोज चला के लेके जाएंगे बाहर और 2-4 लोग को लिफ्ट भी दे दे रास्ते में? मतलब सिर्फ लड़कियों को नहीं, सभी को लिफ्ट दे। लड़कियों को ही देंगे मैडम, वो लड़कियां लिफ्ट लेंगी उससे। चलिए निखिल जी बताइए। मैम, जो यूज करेगा उसकी ज्यादा वैल्यू करेंगे, और यूज नहीं करेंगे तो प्रॉपर यूज करेंगे तो प्रॉपर यूज, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, प्रॉपर यूज करेंगे तो ही आप उसकी वैल्यू करेंगे। इट मींस, मतलब जो पंकज जी और निखिल जी ने कहा कि कोई चीज का अगर आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज तो वो वेस्ट है, चाहे वो मर्सिडीज कार क्यों ना हो। तो सेम विथ आवर बॉडी, सेम विथ द ह्यूमन कैपेसिटी, हमें मिल तो गई है हर चीज और हम उसे यूज नहीं करना चाहते और उसे गैरेज के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं। कोचिंग क्लास में जाएंगे, सबसे इजी चैप्टर बता दीजिए सर, सबसे इजी सब्जेक्ट बता दीजिए, मुझे वो पढ़ना है, वही सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट इजी चीज बता दीजिए जहां बिजनेस हो जाए, कम टेंशन हो। सीए फ्रेटर्निटी में कौन सी चीज में प्रैक्टिस करना है, सबसे इजी वाला रास्ता बता दीजिए जहां प्रैक्टिस करने से पैसे भी अच्छे आ जाए और काम भी कम करना पड़े। तो आप अपनी ही कैपेबिलिटी को यूज नहीं करना चाहते, आप उसे गैरेज में रखना चाहते हैं। तो जो हमें बनाया है, जो हमारा मेकर है, जिसने हमारी रचना की है, उसे अच्छा लगेगा। जैसे प्रवीण जी ने कार को लाके गैरेज में रख दिया, हम अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटी को गैरेज में रख देते हैं, हम अनयूटिलाइज करते हैं, अंडर यूटिलाइज करते हैं। तो आप भी खुद प्रवीण जी से कम नहीं है। जब आप प्रवीण जी की वैल्यू नहीं कर सकते, एक कार को अगर वो गैरेज में रख रहे, तो अपने आप को देखिए कि हम अपने आप को कितना अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। जब भी कभी आप इजी चीजों के पीछे भागें और अपने आप को चीजों से बचाएं, तो सोच लीजिए हम अपनी कैपेबिलिटी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। प्रॉपर पॉइंट टू बी नोटेड। रवि कुंते, आई एम मेकिंग यू अनम्यूट। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताइए रवि जी, इतने देर से आप सुन रहे हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, अभी जो आपने पहले एग्जांपल दिया है जो मूर्तिकार वाला, वो ऐसा दिमाग में फिट हो गया है। अभी कुछ तो कोई करना है, मतलब मूर्ति बननी है आपको, अपनी मूर्ति बनानी है कैसे? अपनी खुद नहीं,
खुद ही आपकी अपनी मूर्ति बनाना है आपको। क्या करते हैं अपने बारे में बताइए रवि जी, मैं तो जानती नहीं हूँ आपको। मैं खंडेरावाल जैन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, वहां पे लास्ट 10 ईयर से एज एम्प्लॉय बोल के जॉब कर रहा हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन? मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम, और एमकॉम सीए में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ अभी। थैंक यू मैम। थैंक यू रवि जी। और किसी को कुछ बोलना है? लमिता लोया। यस मैम, गुड इवनिंग। निखिल लोया जी से कोई रिलेशन है क्या? उनके चेहरे में स्माइल हाँ। आया है। मैम उनकी वाइफ उनकी है, wife इसीलिए हूँ मैं। स्माइल आ गई। मुझे अच्छा लगा उनके चेहरे पे आपने बोला स्माइल आई तो। नहीं मैडम, ये आपने मोटिवेशन वही हो गया। सॉरी मैम, आपका ऑब्जर्वेशन खतरनाक है मैडम। भाई हम ऑडिट भी किए हुए हैं, अभी IAS बनने से पहले बहुत किया है ना हमने। फाइन मैम, सॉरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है मैंने, सो आई एम नॉट रिलेटिंग टू द स्टोरीज व्हाट्स द गोइंग ऑन, बट जैसे आपने बोला कि अपने बारे में कुछ, द थिंग इज गोइंग एज फार एज मोटिवेशन इज कंसर्न, उस बारे में बोलना चाहूंगी। मेरा फर्स्ट एम था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। I always wanted to become a somewhere, I wanted to go on a field, तो उस रिलेटेड सारी चीजें मैंने की थी। लाइक I have done my rifle shooting on a state level, मैंने NCC ज्वाइन किया, मैं CSERT हूँ, मैं राजपथ पे चली हूँ इन द सेंस आई वाज स्टिल देयर, और ऐसे हुआ कि ट्रेन में बैठना है दिल्ली जाने के लिए, ऑन दैट मोमेंट मेरा रिजेक्शन हो गया। सो आई केम बैक टू औरंगाबाद। आफ्टर दैट मैंने SSB की एग्जाम्स दी, SSB की एग्जाम्स दी, मेरा मेडिकल था, मैंने क्लियर किया, मैं मेडिकल जाने वाली थी, एंड आई गॉट एन एक्सीडेंट, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मेरा SSB का सिलेक्शन वहीं पे रुक गया। मेडिकल में आई कुड नॉट मूव ऑन। सो जो भी रिलेटेड चीजें थी एज फार एज आर्मी इज कंसर्न आई हैव डन, बट कुछ बन नहीं पाया उसमें से। देन आई शिफ्टेड एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, मैंने MBA किया। MBA करने के बाद ऐसी सारी चीजें जो MBA HR से रिलेटेड होती हैं वहां जॉब किया, बट एक जैसे बोलते हैं देशभक्ति ही करनी है, कुछ करना है उस रिलेटेड। जहां अभी मैं जॉब करती हूँ, इट्स अ डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल, RSS का हॉस्पिटल है, और सारी रूरल एरिया और रूरल पेशेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। आई एम वर्किंग देयर एज ए HR मैनेजर। देन आई थॉट आई एम वर्किंग देयर सिंस 6 years। फिर मैंने ऐसे सोचा कि ये सेवा नहीं कर सकते हैं, तो somehow I can do this. So because of that only I entered into this field, and बोला जाता है कि हॉस्पिटल में HR बहुत कम होता है, वहां पे HR की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट वी हैव डेवलप्ड आवर HR की अभी औरंगाबाद में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां से हमारा HR और हमारी HR की प्रैक्टिसेस औरंगाबाद में प्रैक्टिस की जाती है। सो आई कैन रिलेट माई स्टोरी टू दिस कि मुझे एक जगह जाना था, मैं जा नहीं पाई, सो आई हैव टेकन दिस वे एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लेया जी। एंड मैं क्यों आप लोगों को अनम्यूट करके बोलने के लिए बोल रही हूँ या फोर्स कर रही हूँ, द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, जब आप अपने आप को अकेले देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद समस्या हमारे साथ है, सिर्फ मेरे साथ है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ही ऐसा हो रहा है, या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। पर सच्चाई में हर कोई ये छोटी छोटी चीजों से उलझ रहा है और छोटी छोटी चीजों से ही आगे आ रहा है। जो इस चीज से लड़ के ऊपर आ जाता है तो वो आगे आपके सामने पहुंच जाता है, जो नहीं लड़ता वो अंदर ही बैठा रहता है तो पीछे रह जाता है। और आपको स्पेशली कि आप ही को अकेले को तकलीफ हो रही है, दिस इज द बेसिक लाइफ, सभी को होनी है। जिस तरीके से धड़कन के ऊपर नीचे जाने से ही धड़कन चलती है, जिंदगी चलती रहती है, और समझ लो जिस दिन धड़कन सीधी होगी तो जिंदगी रुक जाती है।
तो अगर आपको अपनी जिंदगी चलाना है तो ऊपर नीचे जाती रहेगी, तभी आपकी जिंदगी चलेगी। जिस दिन सीधी चलेगी तो आपका मोटिवेशन और खत्म हो जाएगा, यार करना ही क्या है। सब चीज अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप खाना पीना भी नहीं करना चाहिए। क्यों खाएं, क्यों पिए, क्यों जिए, करना ही क्या है। बिकॉज वी आर डूइंग, क्योंकि हमारे लाइफ में चैलेंजेस है। आज नया चैप्टर है, आपको पता है, आप एक एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला दिन आप एक चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन है। सेकंड डे फिर चैप्टर पढ़ते हैं, वही सेम 10 क्वेश्चन, सेम इजी। थर्ड डे फिर चैप्टर पढ़ो, फिर सेम 10 क्वेश्चन इजी। क्या आपको पढ़ने में मजा आएगा? क्या आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा जिसके आंसर आपको पहले से ही पता है? आप अपना 10 मिनट भी नहीं देना चाहते ऐसे क्वेश्चन पेपर को, तो आप अपनी लाइफ, ऐसी लाइफ को देना चाहेंगे जिसमें आपको हर चीज पहले से पता हो, एकदम इजी हो। जिस क्वेश्चन पेपर में आपको सारे आंसर आते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहते हो जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो? आप 5 मिनट भी नहीं जी पाएंगे। हम जिंदगी भर यही सोचते थे, काश हफ्ते में 4 शनिवार होना चाहिए। हमने गाना बहुत सुना है कि काश 4 दिन छुट्टी हो जाती, 3 दिन काम करने जाते और घर पे फोन ना आए, बॉस का फोन ना आए, क्लाइंट का फोन ना आए, कोई प्रेशर नहीं रहे, कोई सेल्स टारगेट नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, आराम ही आराम करे, बस घर पे खाना खाए। आ गया लॉकडाउन, तो आपको मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन होना चाहिए था। कोई काम नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, घर पे ही बैठना है, आपको जाना ही नहीं है। बॉस कभी आपको फोन करके नहीं बोलता आज आपका सेल्स टारगेट कितना है। आपने तो हफ्ते में 7 शनिवार आ गए, फिर आप खुश थे क्या? नहीं थे। आपको खुशी होती है डेली चेंजेस से, लाइफ में कुछ नया चैप्टर ऐड हो, तो रोना मत इस नए चैप्टर से। ऑलवेज बी हैप्पी, मजा आ गया। आप लकी है जो आपके लाइफ में नए चैप्टर्स है, वो अनलकी जिसकी लाइफ आसानी से गुजर रही है। मैं बस एक लास्ट एक लोग किसी एक से पूछती हूँ, फिर हम शायद वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। आनंद जी हैं, आनंद एम, बहुत ध्यान से बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत सीनियर हैं वो। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार एक्चुअली मेरे हिसाब से आवाज आ रही है मैम हमको? यस हाँ जी, हाँ। आपके बारे में तो काफी कुछ पढ़ा हूँ मैं। आई थिंक 2015 आई थिंक read you and I think in UPSC you were in top 500 I think. That time I read you and followed you that time also. Ira Singhal. She's Ira Singhal. She's from 2015 batch and I'm from 2014. और हम लोगों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 14, हाँ, 2014 right, 2014. Sorry, I think that is right. मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ और ILLB लास्ट ईयर हूँ। आई एम 47 एक्चुअली। एक चीज मैम आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये मेंटल ब्लॉक को कैसे निकाले कोई चीज का? मेरे बारे में अगर आपको बोल, हाँ मैं वही बोल रहा था। मेरे एक्चुअली बहुत बार क्या होता है, जो चीज अपने को करना चाह रहे वो नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि मैं एक परली वैजनाथ एक गांव है, वहां मैं प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज माय पेरेंट्स लिव ओवर देयर एंड एक जज्बा था कि लोकल लोगों को मुझे ये करना था। आई वांटेड टू सपोर्ट देम, आई वांटेड टू बेसिकली गिव प्रैक्टिस टू दिस पीपल्स। तो वहां मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वन पर्सन इज प्रैक्टिसिंग ओवर देयर। बट ये जब करता हूँ तो वो पोटेंशियल जो अपने में वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता है। आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज द पोटेंशियल व्हिच आई गॉट। So luckily after 20 years ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि जो चीज आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो। I am not able to do the things which I wanted to do. So ये जो ब्लॉक है that is basically what is वो चीज को हर वक्त आप महसूस करते हैं कि यार ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉक है दिमाग में, ये जनरली आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोटिवेट करना है बच्चों को, जैसा मैं सन इज आल्सो डूइंग CA, सो वो उतना मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ। योर थॉट्स प्लीज। देखो मैं जो बोलूंगी थोड़े कड़वे वचन होंगे ये, कि देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे तो इसके मतलब अंदर से आग पूरी तरीके से लगी नहीं है, वो धुंधली धुंधली सी लगी है। और आप चाहते तो अंदर से एक दिमाग तो कहता है कि ऐसा होना चाहिए और दूसरा दिमाग आपको सुला देता है कि यार क्या करना है, नहीं करना चाहिए। मतलब करने वाले भी आप है और रोकने वाले भी आप है। अब दोनों में जो ज्यादा हावी होगा वो चीज बाहर आएगी। अगर करने वाला आप जो व्यक्ति अगर वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा तो आप कर लेंगे,
और आपके अंदर का आलस होगा कि नहीं यार क्या हो जाएगा, क्यों कर लेंगे, जो नेगेटिव माइंड है अगर वो रोक देगा तो आप नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा और आपको ही पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर मैं आज ये प्रोग्राम में सोचती हूँ, जैसे पंकज जी मुझे फोन करते हैं कि प्रोग्राम में आना है, तो मैं एक साइड तो कहूंगी हाँ यार मुझे आना तो है, सेकंड माइंड करे क्यों आना है यार, देखते हैं आऊंगी कभी, सोच लो आना है या नहीं आना है। ये चीज फाइनली डिसाइड वही करता है जो मेरा डोमिनेटिंग माइंड होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और मैंने दिमाग में कर लिया कि ये चीजें, जो चीजें हमारे बस में है और हम कर सकते हैं इस जिंदगी में रहते हुए, तो कर लेते हैं, तो वो चीज बाहर निकल के आ जाती है। और अगर हम अपने आप को सांत्वना दे देते, क्या फर्क पड़ गया, एक प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, 10-15 लोग नहीं मोटिवेट होंगे तो कौन से दुनिया में चना फुट जाएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ही डिसाइड करना है, वैसे ही आपको ही डिसाइड करना है। बाहर से कभी, मैं सच्चाई बताऊं, मोटिवेशन तो आज के समय का एक दवा हो गया है या ट्रेलर हो गई मूवी की, पर सच्चाई नहीं है। आग सिर्फ आपके अंदर ही है, मोटिवेशन कभी भी बाहर से आ ही नहीं सकता। जब लोग मुझे अवॉइड करते थे, जब लोग मुझे चीजों से दूर करते थे, मुझे देखना नहीं चाहते थे, मैं गिर जाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं चाहूँ तो अपने आप को रोक सकती थी, मैं पढ़ाई नहीं करती, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ मेरा नुकसान होता, मैं आज यहाँ नहीं पहुंच पाती। क्योंकि और मुझे कोई आके मोटिवेट भी नहीं किया कि तुम ये करो या वो करो या ऐसा करो, क्योंकि मेरे अंदर थी कि मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा। और ये भ्रम है कि जिंदगी भर का लोगों का भ्रम है कि कोई और आपके बारे में सोचेगा। आप कभी किसी और के बारे में सोचे हो क्या? हम कभी भी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों को छोड़ के हम दूसरे के बारे में नहीं सोचता, तो कोई हमें क्यों सोचेगा हमारे बारे में? तो हमारा डिसीजन भी हमें ही लेना पड़ेगा और हमें ही ऊपर आना पड़ेगा। सच्चाई है, भ्रम है, मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आ सकता, सिर्फ आपके अंदर की आग आपको बाहर ला सकती है। ये जो बाहर का मोटिवेशन है आपको 3-4 मिनट के लिए याद रहेगा। मैं आपको एक आध कहानी बोलूंगी, 3-4 मिनट याद रहेगा, अच्छा लगेगा, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, 4 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे, घर जाते जाते हाँ एक कहानी सुनाए थे परसों के बाद तो हाँ 1-2 कहानी हुआ था, सेशन खत्म हो गया। पर वो ज्यादा लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। लेकिन अंदर से आग लग गया, किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया मंच पे, यार तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, वो आग आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी, मरते दम तक याद रहेगी, और वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। तो आज सोचो कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण मैं जिंदगी भर ये सोचता हूँ कि ये चीज मुझे करना है, और उसको इतना स्ट्रांग बना दो, इतना स्ट्रांग इग्निशन बनाओ कि वो आपको सोने ना दे और आप वो करके रहेंगे। और अगर आप अपने आप को सांत्वना दे देते, ये ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, हम अपने आप को सांत्वना दे देते इसलिए हम आगे नहीं आ पाते। क्यों हम में से 100 में से 2 बच्चे या 10 बच्चे ही टॉपर बनते हैं या अच्छा पढ़ते हैं, बाकी क्यों 99 नहीं पढ़ते? क्योंकि 99 लोग हमेशा अपने आप को रोक लेते, खुद ही रोक लेते हैं, और 10 बच्चे रोकते नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड दिया हुआ है, सब आम आदमी है। हमें डिसाइड करना कि हमें 10 बच्चों में आना है कि 90 बच्चों में आना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और प्रवीण जी और पंकज जी से निवेदन करेंगे कि हम वाइंड अप करें प्रोग्राम को। अगर किसी को और कुछ कहना तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप दिस प्रोग्राम। कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ शेयर करना चाहते तो काइंडली रेज योर हैंड, सो विल अनम्यूट हिम हर। मैम तब तक मैं बोलता हूँ, आज पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। वी आर सॉरी फॉर दैट, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि मैक्सिमम लोग आए, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी लोग आपको यहाँ सुन रहे हैं, दे विल बी मोटिवेटेड, कहीं ना कहीं उनमें वो आग डेफिनेटली जलेगी मैम, एंड उनको देखकर और ये आग आगे मल्टीप्लाई होगी, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। नहीं पंकज जी, मुझे कम या ज्यादा से तकलीफ नहीं होती है, मुझे 100 मिले या 10,000 मिले कोई दिक्कत नहीं, पर जो मिले चमकदार मिले, 10 भी रहे बस बहुत बढ़िया रहे। आज मैं हैप्पी हूँ कि मैं अभी निखिल लोया जी को जान पा रही हूँ, नमिता लोया जी को। आई वांट कि अगर मैंने 10 मिनट भी दिया, 20 मिनट, तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उनसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। आई फील कि मैं औरंगाबाद में हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी। यस प्रवीण। ओके प्रवीण, कोई है? एनीबॉडी हैज रेज्ड हैंड? नहीं, किसी का नहीं हैंड रेज नहीं हुआ है, नो इश्यूज। अभी सारिका मैडम, जैसे आपने बताया कि एक माइंड हमारा ऐसा होता है कि जो डोमिनेटिंग रहता है, एक वीक माइंड रहता है। रिसेंटली मैडम, एक 3 दिन पहले मैं कोई योगा क्लास में जाता हूँ, तो वहां हमें जो मराठी में बोलते हैं ना, कोलांटी उड़ी मारना, जो छोटे बच्चे जनरली बहुत अच्छे से कर पाते हैं,
तो हमारी 15 लोगों की बैच थी, हमारे मैम ने कहा कि चलो सभी को करना है। तो मैं तो झुक तो गया, लेकिन होगा नहीं ये पता था। मैं बोला नहीं करूंगा मैडम। तो मैडम ने बोला नहीं नहीं आप करो, कर सकते हो। एंड पहले के लिए मुझे ट्राई करना पड़ा मैडम। देन वो जब डोमिनेंस आ गया, एक मैंने वो कोलांटी उड़ी मार ली, देन आई हैव रियलाइज कि मैंने 10-12 मार ली मैं, और मुझे मजा आने लगा। तो आपने जो बताया वही होता है, वो शायद वो एक टाइमलाइन ऐसी रहती है ना कि जहाँ पे कौन से माइंड को हमको डोमिनेटिंग बनाना है, वो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रियलाइज करवाना पड़ता है। वो वीडियो देखा मैम मैंने, ये रुक ही नहीं रहा था, बाद में मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है उड़ी। मैडम बोल रहे बस हो गया, तो भी इसका चालू ही है। सो मैम जैसे आपने बताया कवि सम्मेलन का जो एग्जाम्पल, वैसे है मैडम जो भी पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग में 38 थे, अभी 24 है। लेकिन आपने बताया वैसे मुझे लगता है 24 ये जो सभी पार्टिसिपेंट है दे आर रियली जेन्युइन। हमने मैसेज तो सभी को भेजा था, लेकिन ये आपको सही में सुनना चाहते थे, वही लोग लास्ट तक बचे हैं। और फॉर श्योर मैडम आपने काफी सारे एग्जाम्पल दिए। सबसे हरदम हम सुनते हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम हरदम डरते हैं लोग क्या कहेंगे। तो अभी इंडिविजुअली मैं आपको कहता हूँ मैडम, कहीं ना कहीं मैं ये इससे परे होने की कोशिश करूंगा फ्रॉम टुडे आपके सेशन के बाद। एंड काफी एग्जांपल आपके मोटिवेटिंग थे, जैसा मर्सिडीज वाला एग्जांपल था। आपने कहा लॉकडाउन में 7 सैटरडे मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं रह पाए। तो इट इज रियली वेरी इंस्पिरेशनल सेशन मैम। मैं तो आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मैंने नाम ही सुना था, बट इट्स रियली वेरी गुड। So I thanks a lot from the behalf of Aurangabad branch of WIRC, ICI, औरंगाबाद विकासा, जो भी पार्टिसिपेंट आए थे मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपको मैडम से इंटरेक्ट, जनरली क्या होता है ऐसे सेमिनार में स्पीकर से इंटरेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें सोचा नहीं रहेगा कि मुझे इंटरेक्ट करने मिलेगा सारिका मैम से। यस यस अनुज यस 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 मैंने देखा, मैं लेता हूँ मतलब। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अब जैसा मैडम फॉर एग्जांपल लेट्स से नमिता लोया, शी इज नॉट फ्रॉम द सीए फैटर्निटी, बट उन्हें आज आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, नुपुर बांगड़। तो इट्स रियली गुड। अनुज भैया आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, काइंडली अनम्यूट। हाँ नहीं, मैम के बारे में सुना है, लेकिन उनके मुंह से थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी, उनका स्ट्रगल स्टोरी सुनना चाहेंगे, जिससे हमें भी हमारे लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिले कि कुछ ना कुछ आगे आज जो स्टेज में है और कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिले। इसलिए मैडम प्लीज आप थोड़ा सा आपका शॉर्ट में सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी बताइए प्लीज। मैं एक्चुअली आई डोंट नो आई हैव सक्सेस स्टोरी और आई हैव स्ट्रगल स्टोरी, क्योंकि मुझे दोनों ही चीजें कभी फील नहीं हुई। जब मैंने सीए कंप्लीट भी कर लिया, जब मैं आईएएस का एग्जाम देके आईआरएस भी मुझे मिला, तब तक भी मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैंने कोई लाइफ में स्ट्रगल किया है। बनने के बाद जब लोगों ने बोला तब फील हुआ कि अच्छा ये भी स्ट्रगल होता है। बहुत ज्यादा अभी मैं डिटेल पे नहीं जानना चाहूंगी, बहुत अजीब लगता है मुझे खुद से बोलना। एक यूट्यूब पे मेरे नाम से अगर नाम डालेंगे तो जोश टॉक का एक वीडियो है, मेरे ख्याल से मोर देन 1 या 2 करोड़ लोगों ने देखा है उसे। और सिंपल है, सिंपल से जिंदगी थी। पैदा हुए 2 साल में पोलियो हो गया तो आप चलना फिरना बंद हो गया, बेड पे रहते हैं। फिर स्कूल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे तैसे करके हम स्कूल का एडमिशन होता है, स्कूल कंप्लीट करते हैं, 10th कंप्लीट होता है। और टिपिकल गांव पे थी, और घर वाले भी टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, और फिजिकली चैलेंज बच्चा है तो वो और डरते हैं कि एक बच्चा अपने आप को कैसे किसी हॉस्टल में रख के पढ़ाई कर लेगा। तो मुझे अपने गांव से बाहर जाने की कभी वो नहीं मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मुझे जैसे साइंस लेने था, मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे गांव में साइंस नहीं था। ओनली यू कैन टेक आइदर कॉमर्स और आर्ट्स। तो फिर मैंने कॉमर्स लिया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई। और मेरे कॉलेज के बारे में बताऊं तो मेरा कॉलेज एक स्कूल को पार्ट टाइम कॉलेज बनाया गया था, ऐसा था। और जहाँ पे 3 या 4 रूम थे जिसे कॉलेज में तब्दील किया जाता था कुछ घंटे में। तो हमने वहाँ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको घर पे ही रहना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप घर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद मन में इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ूं, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। 3-4 साल मैं घर पे रही, पढ़ाई छूट गया, और ये होप से छूटा कि आप आगे आप कुछ और कर नहीं सकते। 4 साल के बाद में सीए के लिए वापस मुझे कहीं से परमिशन मिल जाती कि आप सीए कर सकते हो,
तो मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट की, और जब मैंने स्टार्ट की तो सोचो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे कॉमर्स का सी भी याद नहीं था, और मैं अपने से 7 साल 6 साल छोटे लोगों के साथ हॉस्टल में रहती हूँ वापस, तो आप सोचो उनके साथ रहती हूँ, वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट थे और मुझे कुछ नहीं आता था, तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता था पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और फिर भी मेरे को तकलीफ नहीं होती थी, मुझे लगता था ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहली बार मुझे घर से बाहर आने का परमिशन मिला है रहने का, तो मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और साथ के साथ मुझे पोलियो है, चलने में दिक्कत है, सारी परेशानियां लेकिन दिमाग में नहीं थी। सीए भी कंप्लीट हो जाता है मेरा, सीए में भी मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने रायपुर से किया, वहाँ मैं टॉप करती हूँ, मुझे बेस्ट स्टूडेंट बनाया जाता है, तब भी दिमाग में नहीं आता कि मैंने कोई 30 मार्क हाँ बन गई, तब ऐसे आया यार सीए बन जाने से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं सीए भी बन जाऊं तो मुझे वो ओहदा नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बचपन से डिस्क्रिमिनेट हुई थी, मुझे पता है कि मुझे बेसिक चीजों से हटाया गया था, मुझे पता था कि मेरी पढ़ाई मेरे लिए रोक दी गई थी, मुझे पता था कि वापस से मुझे एक कंजर्वेटिव फैमिली में जाना पड़ेगा। तब मेरे को लगा कि अगर आपको समाज में एक अच्छे ओहदे पे जाना है, सम्मान चाहिए, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा। फिर मैंने आईएएस बनने का सोचा, तब आईएएस भी मुझे पता नहीं था आईएएस भी क्या होता है, तब उसके लिए मेहनत की, ले दे के इनिशियली घर पे भी कन्फ्रंट हुए कि भाई तुम नहीं बन सकती है, तुम हो ही नहीं सकती, इतनी इंटेलिजेंट ही नहीं, कहाँ से बनोगी, क्योंकि हमारे पूरे वेस्टर्न उड़ीसा में और पूरे उड़ीसा से कोई मारवाड़ी लड़की आईएएस के लिए नहीं बनी थी, और फिजिकली चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं, और सीए से आईएएस तो बहुत डिफिकल्ट चीज थी, मतलब मैं सीए जब जीएमसीएस की क्लासेस होती तो मैं सीए की अपने आईएएस की पढ़ाई करती रहती थी, तो मेरे बैचमेट्स बोलते थे यार तुम क्या कर रही हो, हम तो अच्छे अच्छी नौकरी में चले जाएंगे, हमारे पास तो इतनी इनकम होगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी दिमाग में था कि नहीं आईएएस तो करना ही है मुझे, मैं जिद करके करती हूँ, और कोइंसिडेंटली मेरा आईएएस का एग्जाम हो जाता है क्लियर और मैं बन जाती हूँ ऑफिसर। मेरा रिजल्ट आता है तो वो गांव के लिए ब्रेकिंग न्यूज होता है, गांव के लिए क्या पूरे उड़ीसा के लिए ब्रेकिंग न्यूज होता है। आप विश्वास नहीं मानते थे, ब्रेकिंग न्यूज में हमेशा चलता रहता है मेरे रिजल्ट के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में, मेरे स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, मेरे घर पे मीडिया का तांता लगा रहता था, 3-4 दिन तक तो घर पे शांति नहीं थी, मीडिया वाले कंटिन्यूअस आते रहते थे, घर के लिए सेलिब्रिटी हो गई थी, घर के पूरे वेस्टर्न उड़ीसा के। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक बंदा मेरे यहाँ सुबह सुबह पहुंचता है 6-7 बजे, कोई दूसरे सिटी से आता है, शायद 300-400 किलोमीटर दूर रहता था वो, उसने शायद न्यूज में कहीं मेरा नाम देखा होगा, वो मेरे घर आता है कि सिर्फ मिलने के लिए। तो मैंने पूछा भाई तू ये घर का एड्रेस कैसे पता, तो बोला मैं स्टेशन से उतरते बस इतना बोला मुझे सारिका जैन के घर जाता है, सबने मुझे बताते बताते यहाँ भेज दिया। इस तरीके से पॉपुलैरिटी भी हो गई। और सबसे बड़ा चेंज जो आया कि जो लोग सोचते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ सीए करवा दो, एमबीए करा दो, इंजीनियरिंग करा दो, ये मैक्सिमम चीजें, अब उन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं हमारे बच्चे को हम सिविल सर्विस में भेजेंगे, हम आईएएस बनाएंगे और हमारे बच्चे कर सकते हैं। हमारे अंदर, हम गांव पे तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते, जब एक फिजिकली चैलेंज लड़की कर सकती है, बेसिक चीजें उसके पास नहीं वो कर सकती, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और आज हर बच्चे की जुबान पे ये चीज है कि हम कर सकते हैं, और हर साल एक ना एक बच्चा मेरे गाँव से ऑफिसर बनता है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पहले होता था। तो ये चेंज आ गया, लोग खाली आज ये कोई नहीं बोलता कि मुझे सिर्फ सीए बनना, आज बोलते सीए एमबीए आई, ये तो मुझे करना ही करना है, साथ में मुझे आईएएस बनना है। बच्चे बच्चे की जुबान पे ये, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं मेरे बच्चे को मुझे खाली दुकान पे नहीं बैठाना है, मुझे आगे पढ़ाना है और हॉस्टल से भेजने से रोकना नहीं। तो ये चेंज आ गया मेरे गाँव पे, और ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है। तब आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक समय आता था जब लोग मुझे गूंगी बोलते थे, मुझे बोलने में डर लगता था, हेजिटेशन लगता था। आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ एज ए स्पीकर, मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी। तो ये बोलने के बाद जब मैं ऑफिसर बनी, जब पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ, तब मैंने मेरे पापा से पूछा कि ये इंटरव्यू क्या होता है पापा, मुझे बोलना क्या है। तब उन्होंने मुझे 2-3 लाइनें लिख के दी कि बेटा तुम इंटरव्यू में ऐसे बोलो, और उसके बाद आज आप मुझे देख सकते हैं। ये बदलाव आता है किसके कारण, यूपीएससी में, सिविल सर्विस में आने के कारण। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चे को जरूर कोशिश करें, अगर हो सके तो जरूर बच्चे को सिविल सर्वेंट बनाए, अगर नहीं बन पाता तो एटलीस्ट पढ़ाई करवाए, अपने देश के बारे में जानेगा तो उसके अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आएगा कोई पढ़ाई से नहीं आ पाएगी। और जरूरत है, जिस माहौल पे आप रहते हो उसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत बता दिया मैंने अपने बारे में। आनंद भैया आपको कुछ क्वेश्चन था, आपने
मैं नागार्जुन जी को बोलूंगी। नागार्जुन जी, आपकी वाइफ से मैं बात करना चाहूंगी, कैसा लग रहा है? कुछ मोटिवेशन मिला? घर की मुर्गी दाल बराबर अभी भी है या कैसा है? घर की मुर्गी दाल बराबर है। कुछ फर्क नहीं पड़ा मैडम। अच्छा, अभी और उनको डोज चाहिए ऐसा? हाँ, मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगा। एक बार आप मर्सिडीज कार पे घूम के आइए। प्रवीण जी, आप पहले प्लीज घुमा के लाइए। नागार्जुन जी, मैडम का वो मैडम ने बोला वो वीडियो बताइए एक बार। आनंद भैया, आपको कुछ पूछना है? हेलो हेलो। नहीं, आवाज हाँ, अनुज के बारे में, अनुज जो बोल रहा था वही बोलना चाह रहा था। ओके एक्चुअली एड्रेस हो गया था। बस थैंक यू बोलना चाह रहा था मैडम को। आप सबके लिए रोल मॉडल हो मैडम, इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं। सो आई रियली थैंक यू मैम कि आपने औरंगाबाद जैसे प्लेटफॉर्म पे हमने इनवाइट किया, आप आए और आपने हमें सभी को मोटिवेट किया। सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, रादर मैं बोलता हूँ कि इन्वॉल्व कर लिया। यानी जैसा आपने छोटे छोटे, जैसा मेरी भी स्टोरी सुनने का मौका दिया, कहीं ना कहीं कोई एक अलग थॉट प्रोसेस हो जाता है कि कोई मुझे सुन रहा है, मुझमें मेरी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसा हर एक को, काफी लोगों को लगा। तो आपने इन्वॉल्व किया और अच्छे से मोटिवेट किया। थैंक्स अ लॉट मैम। और भविष्य में भी हम आपके सेमिनार अच्छे मौके पे रखना चाहेंगे जहाँ पे काफी ऑडियंस को ये मोटिवेशन का बेनिफिट हो। सो रियली थैंक्स अ लॉट एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट। आपने भी मैडम को रिस्पॉन्स किया, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नहीं बच्चे, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो ऑटोमेटिक ही छोड़ दी उन्होंने मीटिंग। सो जो बच्चे हैं उन्होंने मैडम के जो भी इंटरेक्शन थी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सो आई थैंक्स to all of you and I say ki we'll conclude the meeting. Thank you madam once again. Thank you to all. Hello, have a Thank good you day. madam. Take care. Yeah ma'am. Thank you madam.